Hello and welcome to yet another session of Brandos Friends. A very good evening to you all. Myself, Dr. Sudhi Agarwal Kamboj, your breast and endocrine surgeon. Welcome you all to yet another session of Brandos. This October month is a very auspicious month, and in this month we have a very interesting topic with us, जो हम लोग यहाँ discuss करेंगे, and we have very good presenters with us. So before we start our actual program, हम अपने program को शुरू करने से पहले I would like to brief you. बहुत सारे हमारे participants हैं जो पहली बार हमारे साथ हैं. So I would like to brief you about what is Brandos, WUP, and what are its objectives and how we work actually. So friends, Brandos means Breast and Endocrine Society of Western Uttar Pradesh. Since I'm a breast and endocrine surgeon trained from reputed institutes of the country, I have started this forum in the western part of Uttar Pradesh. Therefore, it is Brandos WUP, Western Uttar Pradesh. But the name suggests it is related with WUP, Western Uttar Pradesh. It is a pan India forum. In this forum, we have monthly meetings on every last Friday of the month at 7 p.m. and it is fixed. And we take the opportunity to learn about breast and endocrine related problems on an alternate basis with breast meets on every even months and endo meets for every odd months. So we have a perfect balance where we do a problem based learning. It's a forum exclusively for the doctors where we do a problem based learning. We pick a problem from the clinical practice. We discuss about that problem in detail with actual images, radiology, pathology, with the help of the experts, those who have actually reported those images. And through these exercises, we try to train our mind so that we all learn from each other. So it's a multidisciplinary program for each patient. It's not only a single doctor, there are multitude of other specialties that are involved. We bring all the specialties together, discuss about the patient in detail, and learn from each other. We are successfully running this program for past 1.5 years, more than that, and we are about to complete our 2 years of successfully running this program. We have more than 500 participants in our WhatsApp group who contribute positively in the growth of the breast and endocrine sciences. And friends, in today's program, it's a bit hatke because it is something which is never discussed about. हम कभी finances की बात नहीं करते. So breast and endocrine society doesn't only focus in academics. We try to cover each and every aspect of a doctor's life, a doctor's practical practice, professional as well as personal life, so that we can improvise ourselves. So this time we took the opportunity. It is an auspicious month of Deepavali, which is a festival of prosperity, and with the blessing of Ma Lakshmi, this time we take an opportunity to learn from the experts how to manage our finances. You know, friends, finances, management of finances is not by chance. Everyone grow not by chance. It is some art and science behind it जो हमें नहीं पता. कुछ आर्ट है, कुछ साइंस है. वो क्या आर्ट है, वो क्या साइंस है, ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपने थोड़े से अमाउंट से ज्यादा ग्रो करते हैं, कुछ लोग अपने बड़े अमाउंट को भी लेके डूब जाते हैं. तो इस आर्ट एंड साइंस को आज हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे. फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्राम होगा ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इसमें इंगेज हो सके, हम बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कर सके, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सके. सो आई होप दिस फॉर्मेट विल सूट मैनी ऑफ अस. और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ. आई वुड लाइक टू थैंक आवर एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें कंसल्ट किया आज के प्रोग्राम में आने के लिए. डॉक्टर प्रणव गुप्ता is an anesthetist. He is an eminent anesthetist. And now I would like to introduce Pranav Gupta. And Dr. Pranav Gupta is a graduate from Kanpur Medical College, and he is a practicing anesthetist in Meerut, a very renowned anesthetist with lot of academic interest, and not only in academics, he has a lot of laurels in his CV. And the most important thing is he is an expert in
money management, the financial management, and he is known to take a lot of talks in various forums for the doctors, where he teaches and trains the doctors about how to manage their money, how to do financial investment, what to do, what not to do. And he kindly consented to moderate our today's session. And I request Dr. Pranav Gupta sir to now please take the dice एंड हमारे जो ऑडियंस है कुछ संदेश दें, अपने बारे में बताएं, अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अपने व्यूज के बारे में बताएं और इंट्रोड्यूस करें हमारे स्पीकर को, डॉक्टर रितेश अग्रवाल को. Hi, thanks for the introduction, Dr. Sudhi ma'am. I've been into financial management from the first salary which I got. The time we all need to start our financial management from the first salary, and if you've not started yet, it is the best time to start it. And I would like to introduce Dr. Ritesh. He was my senior in Kanpur. Welcome, sir. You in this seminar a lot about financial management. और डॉक्टर रितेश अग्रवाल का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, उनके बारे में मैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वर कलीग्स, वी डिड द ब्रेस्ट एंड ही इज द प्रोमिनेंट ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन एंड ही इज करेंटली प्रैक्टिसिंग इन मुंबई. He's trained from the prestigious Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, and GSVM Medical College, Kanpur. And following which, he is now based in Mumbai for last 10 years or more. And we call him as Mumbai Pasha. It is his nickname. And he is into financial management. And not only that, he's teaching and guiding so many doctors across the country in financial management. And if I can recall, जो हमारी एक recent meeting हुई थी PGES 2023 SGPGI में at 6 PM शाम के 6 बजे, जहां सब लोग absolutely exhaust हो जाते हैं मॉर्निंग के सारे lectures कर के. And that time he had his lecture, and in his lecture all the stalwarts of SGPGI, HODs, senior professors, they all came from all the specialities of the institute just to listen him. सिर्फ उनको सुनने के लिए सारे स्टॉलवर्ड्स ये सब वहां पर आए और पूरे टाइम 2 घंटे का टॉक था. 2 घंटे आराम से बैठ के उन्होंने सिर्फ इनको सुना और हमारे बीच में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. और सेम डिस्कशन वी आर एक्सपेक्टिंग टुडे. एंड I did not want to miss the opportunity to listen him and bring him in our forum, where जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग भी इन्हें सुने और इनसे सीखें. तो रितेश, your slide speaks a lot about you. I don't think any other thing will give more introduction. And I request you now, you can present your presentation with us. And the stage is all yours. Thank you so much, Dr. Sudhi. It is actually an honor for anyone to be introduced at the same time by a dear senior as well as a dear junior also. So Pranav has been very close to me during my GFM days. Dr. Sudhi was very close to me, just my immediate senior at my GPI training. And really an honor for me to come here and present my views. Thanks to Dr. Sudhi and thanks to Breast and Endocrine Surgery Society of Western UP for inviting me and giving me an opportunity to share my views with you all. Thanks a lot. So starting my presentation. So before starting my slides and any presentation, I always give a disclaimer that there are many free WhatsApp groups which I manage. These WhatsApp groups are on stock markets, and we have members pan-India, doctors only, and some non-medicals. I have no intention to make any customer. That's very clear. No finances involved, absolutely. This is fully free of cost. Just my intention is to guide doctors, nothing else. I am not sponsored by any company. My views are purely my individual. These are based on my personal studies and experience. My aim is to just discuss on financial management because time is short and financial management is a huge topic. So in short, I will be discussing only the basics. I will focus on investment tools, and the most important aim is to motivate the younger generation towards investment. As Pranav already told that we should start investment from the very early, as early as possible as we get the first salary. Before I start my main presentation, I always share the screen with everyone who are my inspirations. Dr. Ashok Shukla, he is a president of Association of Medical Consultants, which is a 30,000 plus members of consultants in Mumbai. Dr. Prashant Mishra, he is a cardiac surgeon and he has more than 1.5 lakh followers on Twitter. Extremely good analyst.
Dr. Amey Joshi is my close friend, endocrinologist, but an extremely good analyst, and Dr. Neeraj Jindal, anesthetist. So we started few years back when we keep on discussing. These are my friend circles, so we keep on discussing few shares, few investment modalities among ourselves, and that's how our knowledge, everyone's knowledge, keeps on increasing. पैसा बोलता है, सच में पैसा बोलता है, पैसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है. हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है. कौन ऐसा है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? द पावर ऑफ मनी इज दैट इट हैज नो लैंग्वेज, बट इट इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज. आज मैं आपसे हिंदी में बात करूं और आई स्पीक इन इंग्लिश or I speak in any XYZ language, but you will understand, because that is the power of money, and that is what you are all here to listen. Financial management has few subheadings like earning, saving, investing, utilizing, and time management also. It also comes under financial management. It's very important. Do you want to earn money? आप में से कौन ऐसा है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? शायद ही कोई हो. मैं ख्याल में सभी पैसा कमाना चाहते हैं. अगर हाँ, तो कितना? मनी कैसे कमाया जा सकता है? एथिकल वे से ही मनी कमाना चाहिए. हमेशा ध्यान रखें, देयर शुड नॉट बी एनी अनएथिकल प्रैक्टिस, एनी अनएथिकल मींस ऑफ मनी अर्निंग, बिकॉज आप एथिकल वे से भी काफी अच्छे से तरीके से पैसा कमा सकते हैं. टेक माय वर्ड्स, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. आप एथिकल तरीके से भी पैसा अच्छे से कमा सकते हैं. मनी कैन बी अर्न फ्रॉम योर सैलरी और योर प्रोफेशनल इनकम. वी ऑल आर डॉक्टर्स एंड वी डू वेरी हार्ड वर्क just to earn some peanuts of monies. If we earn money in ethical ways, our practice and our growth is exponential. And अगर आज हम एक पेशेंट से स्टार्ट करते हैं, हम एथिकल तरीके से काम करते हैं, तो विद इन फ्यू ईयर्स हमारा वही टाइम 100 पेशेंट की हमारे यहाँ लाइन लगी रहती है. सो वी शुड डू एथिकल प्रैक्टिस, और हमारे यहाँ कभी भी प्रैक्टिस की कमी नहीं रहेगी. अर्निंग हमेशा होती रहेगी. एट द सेम टाइम एजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपनी एज का भी ख्याल रखना चाहिए कि एजिंग भी होगी. हम जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, हमारी एज भी बढ़ती जाएगी. एज अ डॉक्टर, वी ऑल हैव कैश इनकम. दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट डिनाई, विच वी कैन नॉट रिफ्यूज ऑल्सो. सो कैश इनकम होनी ही है, बट वी शुड से नो टू ब्लैक मनी. कीप ऑन कन्वर्टिंग दिस कैश इनकम इनटू व्हाइट मनी by depositing in bank accounts regularly, so that there shall be a good capital build-up over a long term. We should never hold huge cash in houses. Nowadays, as the time is progressing and digital payments are increasing, so it is very easy nowadays to pay anything by digital means, and that is why cash should be reduced as much as possible at our households. Cash का management कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं. एक पहला कॉलम देखें, कीप इट एज अ ब्लैक मनी. अगर आपके घर में ब्लैक मनी है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे. ये फैक्ट है. हमेशा हमें डर लगा रहेगा कि घर में चोरी हो जाएगी, घर में डकैती पड़ जाएगी, या घर में रेड पड़ जाएगी इनकम टैक्स वालों की या किसी की भी. और अगर हमारे घर में 1 लाख रुपए का कैश रखा हुआ है, तो वो 1 लाख रुपए ही बना रहेगा 10 साल के बाद. अगर हम ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है, वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है, हमने टैक्स दे दिया, कोई इश्यू नहीं. बाकी पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से. ये 1 लाख 10 साल के बाद एक नॉमिनल CAGR पे, तो CAGR क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये 2 लाख या उससे भी ज्यादा बन सकता है आराम से. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि घरों में कैश नहीं रखना चाहिए. मिनिमम से मिनिमम कैश रखें. मैक्सिमम टाइम उस कैश को ब्लैक बैंक में डिपॉजिट करके टैक्स पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए. मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट. सेविंग वो पैसा होता है जो हम अर्न करते हैं बट हम स्पेंड नहीं कर रहे हैं. दैट इज आवर सेविंग. हमारे पास पैसा है, हम उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बस हम उसको सेव करके रखे हुए हैं. इन्वेस्टिंग, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे निवेश कर रहे हैं जहाँ पे वो पैसा ग्रो कर रहा है. दैट इज इन्वेस्टिंग. मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज में एक कंसेप्ट है कि हम अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाएंगे. दैट इज द सेविंग फॉर फ्यूचर. एक और कंसेप्ट है जो मैं बोलता हूँ सबको, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर. दैट इज कि हम पैसे को इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए पैसा सेव करेंगे. दैट इज अ बेटर आइडिया एज कम्पेयर टू सेविंग. सपोज करो आप बैंक में खाली फिक्स डिपॉजिट में रखे रहो या खाली सेव करके रखे रहो, वो हमें ज़्यादा यूज का नहीं आएगा, हम उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. बट अगर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे फ्यूचर में ज़्यादा पैसा हमको रिटर्न मिलेगा. हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी काम करने की क्षमता भी कम होती जाती है. सो लेट अवर मनी शुड वर्क फॉर अवर सेल्स ओनली. लेट योर मनी शुड वर्क फॉर यू. तो आज ही आप ऐसा काम करें कि आपका कल ऐसा रहे कि आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाता रहे.
Money is the best employee. Remember this thing, money is really the best employee. It works 24 into 7 into 365. It never gets sick, never takes any leave or holiday, it never dies, and we should respect this employee. So मनी को अर्न भी करना है और मनी को रिस्पेक्ट भी करनी है. अब आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आज की टॉक बेस है, इन्वेस्टिंग मनी. कब करना चाहिए, व्हेन टू डू. आज करना चाहिए या हम समय का इंतजार करें कि बाद में करेंगे जब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एज मैटर्स, यस, एज रियली मैटर्स व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग. टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस. वी शुड सेव टाइम एंड वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस इज द की. इन्वेस्टमेंट में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है. जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, वरना आप हमेशा टेंशन में रहेंगे. तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में. नेवर डिले, जैसे डॉक्टर प्रणव ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, नेवर डिले, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एज सून एज यू कैन. जितना आप डिले करेंगे उतना वो टाइम फैक्टर आपका हटता जाएगा, आपका एक्चुअल रिटर्न कम होता जाएगा. इंक्रीज द कंट्रीब्यूशंस एज योर अर्निंग इंक्रीज. सपोज करो आज से 10 साल पहले हमारी इनकम महीने की करीब जो है 50,000 60,000 थी. आज की डेट में इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए है. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाते रहिए, बट कंट्रीब्यूट कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं कि हमने 10 साल पहले 1 लाख रुपए जमा करके छोड़ दिया था और उसको देखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है. ऐसा नहीं करना है. कीप कंट्रीब्यूटिंग. अपना इन्वेस्टमेंट का अगर पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तो भी कंट्रीब्यूट करते रहना है, नीचे जाता है तो भी कंट्रीब्यूट करते रहना है. स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होती है बट कंट्रीब्यूट करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए. एट द सेम टाइम जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस जगह का फीस और ब्रोकरेज जरूर से ध्यान देकर रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा फीस लगेगी या जितना ज्यादा ब्रोकरेज लगेगा उतना ज्यादा टैक्स लगेगा. तो वो पैसा भी आपकी पॉकेट से ही जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट करिए बट वाइजली करिए ताकि आपका फीस और ब्रोकरेज कम से कम लगे. एज पर द एज, जितना यंग एज होगी हम रिस्की बेट ले सकते हैं. इन मिडिल एज हम बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, बट ओल्ड एज में हमको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास हमारी लाइफ के लिए ही टाइम कम है. सो वी शुड गो फॉर सेफ मोडेलिटीज ओनली. एज का इंपॉर्टेंस होता है, एक फॉर्मूला होता है. हम लोग जो है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसको उतना परसेंट रखना चाहिए जो 100 में से माइनस करें अपनी एज को, जितना बचेगा उतना परसेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए. सपोज आज की मेरी एज है 48 की, तो मेरे को 52% आई शुड गो फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर्स फॉर अ बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स. दैट इज अ गुड प्रोटोकॉल. अगर कोई 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो ही कैन गो फॉर 80% रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. दैट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड. इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 लाख रुपए आपके पास अगर आज कैश में रखा हुआ है 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेगा, बट साल का इन्फ्लेशन भी हमको काउंट करना पड़ेगा. तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख ही नहीं रहेगी. हर साल का 6% इन्फ्लेशन काउंट करके उसके हिसाब से वैल्यू उसकी कम होती रहेगी. मे बी अप टू 50,000 या 60,000 ही खाली बचेगा. सो इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट इज व्हाई हम अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं अपना ज़्यादा पैसा, हमें इंटरेस्ट मिलता है खाली 3 से 4%. हर बैंक का है. अगर हम एफडी में रखते हैं तो हमें 6 से 8% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर का. हमने अगर उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जो साल का 6% है तो हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है देखा जाए तो हार्डली पीनट्स मिल रहा है जो रिटर्न मिल रहा है. सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन को कभी भी उसको मिस नहीं करना है. एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बीट इन्फ्लेशन, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट. There are many modalities, many instruments of doing an investment. स्टॉक्स जिसको इक्विटीज भी बोलते हैं या शेयर मार्केट. ढेर सारे फंड्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्सेट्रा, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर, बैंक एफडीज या सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लाइक पोस्ट ऑफिस एफडीज, सेविंग्स अकाउंट स्कीम्स, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि एक्सेट्रा, पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एलआईसी पॉलिसीज, मेडिक्लेम एंड टर्म इंश्योरेंसेस. मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर बोलूंगा, शेयर मार्केट के ऊपर ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वही हमारा आज का क्रक्स है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे कि स्टॉक्स या इक्विटीज में जरूर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रीशियस मेटल्स आर आल्सो गुड थिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स स्पेशली सुकन्या समृद्धि इज गुड फॉर यंग गर्ल चाइल्ड, पीपीएफ एंड एनपीएस आर गुड modalities for tax saving, LIC policy are definite no, property real estate depends upon the person to person choice, insurances yes, mediclaim and term insurance should be taken by everyone. अब दो टर्म होते हैं, टेक्निकल टर्म होते हैं, वन इज इन्वेस्टमेंट, वन इज ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने जमा करके छोड़ दिया, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया.
ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको बेच दिया, उसमें से पैसा निकाल लिया प्रॉफिट के साथ में। तो शेल वी ट्रेड, हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ डॉक्टर। सी, हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, हमारा मेन इनकम प्रोफेशनल इनकम होती है। तो शेल वी ट्रेड? नो, वी शुड नॉट ट्रेड। शेल वी रिमेन इन्वेस्टेड? यस, हमें एज मच एज पॉसिबल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। डू यू हैव पेशेंस? पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो हम लोगों में अक्सर मिस करता है। हम लोग रिटर्न देखते हैं, साल 2 साल के बाद ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा, हम लोग हट जाते हैं। ये चीज गलत है, हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। सपोज मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये सिंपल कैलकुलेशन है, 20% से 30% रिटर्न के हैं 1 लाख रुपए के ऊपर। हमने एक कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, हमको 1 साल के बाद वो रिटर्न 20% से 30% मिल रहा है, तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? या फिर हमें 5 साल में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है तो हमें एग्जिट करना चाहिए? या फिर हमें 20 साल में 38 लाख से 190 लाख यानी कि 1.9 करोड़ हो रहा है तो हमें एग्जिट करना चाहिए हमें, और उसी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? इसमें से क्या चीज बेटर है, आप खुद से बताइए। मेरे हिसाब से जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, 20 साल में लगातार हमें इतना बढ़िया रिटर्न अगर मिल रहा है तो हमें तो ऐसे इन्वेस्ट करके रखना है और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसमें हम क्यों एग्जिट करेंगे जब तक हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कमिंग टू शेयर मार्केट, शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट में ढेर सारे एक्सचेंज जो है मॉडलिटीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। ढेर सारी कंपनीज इसमें लिस्ट होती हैं, हम लिस्टेड कंपनीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वन कैन बाय और सेल शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज, एंड इसका टाइम होता है सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक के। स्टॉक बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट रिस्क है तो इश्क है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हमेशा ध्यान रखें, इसमें रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है। शेयर होल्डिंग मीन्स पार्टनरशिप इन अ कंपनी। मैं शेयर होल्डिंग अगर मैंने किया तो मेरे को शेयर पार्टनरशिप मिल रही है कंपनी में। आई बाय ओनली व्हेन आई अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर एस्पेक्ट्स। सो दिस शुड एप्लीकेबल टू एवरीवन। जब तक आप कंपनी का बिजनेस ना समझिए या कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ना समझिए, आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा कंपनी को पहले रिसर्च करिए, थोड़ा सा आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च करिए तब इन्वेस्ट करिए। एक कंपनी होती क्या है? एक जनरल होता है कि एक ओनर या फाउंडर होता है जो जिसको पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो वो इन्वेस्टर्स को फाइंड करता है। पहले तो जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई है तो वो इधर उधर से इन्वेस्टर जुटा के उसको जो है इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उनको अपना उसमें शेयर होल्डिंग देता है कंपनी में। फिर धीमे धीमे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो पब्लिक के लिए ओपन हो गया, कोई भी पब्लिक खरीद सकती है, बेच सकती है। कंपनी के मैनेजमेंट में देयर इज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि कंपनी की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, और मैनेजमेंट के लिए सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ वगैरह अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को रन करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डिंग के प्रोज एंड कॉन्स समझने जरूरी हैं। शेयर का प्राइस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो हमने आज जो 1 लाख रुपए लगाया वो कल को बढ़ के 2 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इतना रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं तभी हमें शेयर मार्केट में इंटर करना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जब शेयर होल्डिंग होती है तो कंपनी हमसे पूछती है कि ये रिजोल्यूशन के लिए आपका वोट क्या है, तो हमें पता रहता है कंपनी में क्या चल रहा है। डिविडेंड्स, डिविडेंड इज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू शेयर होल्डर्स। सो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है साल भर में, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनलिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके जितने ज्यादा शेयर उतना ज्यादा डिविडेंड। कुछ कंपनियां कुछ भी डिविडेंड नहीं पे करती हैं, कुछ कंपनियां बहुत ही हैंडसम डिविडेंड पे करती हैं, दैट इज मोर देन 10% पर ईयर। सो सपोज को हमने आज 100 रुपए का एक शेयर लिया था, हमको डिविडेंड का ही इनकम उसकी 10% पर ईयर की हो रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि डिविडेंड हमको इतना अच्छा मिल रहा है, और प्लस शेयर का रेट भी बढ़ता जा रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट एक जनरल प्रोटोकॉल कभी कभी ऐसा होता है कुछ शेयर्स में। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करती हैं, कुछ कंपनी साल में खाली एक बार पे करती हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे स्टॉक्स को सिर्फ डिविडेंड पर्पस के लिए लेते हैं कि उनको साल की डिविडेंड इनकम होती रहेगी। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट मींस डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स। So there's a separate account from bank account. It is known as Demat account. There are multiple brokerage agencies like many big banks, Kotak, HDFC, ICICI, Motilal Oswal, or some private brokering like Zerodha, etc., where you can open a Demat account and start investing and trading. There are 2 types of Demat accounts. One is brokerage account, one is discount broking. Brokerage means they take some brokerage on every buy as well as sell, and tax is paid on these brokerage. So जितना ज़्यादा ब्रोकरेज होगा उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है जहाँ पे ब्रोकिंग डिस्काउंट है या फिर हमारा मिनिमम से मिनिमम ब्रोकरेज लगता है, तो मैं तो उसमें ही
डीमैट अकाउंट खोला हुआ है जहाँ पे ब्रोकरेज सबसे कम लगता है। ट्रेडिंग जो होती है, जैसे हमने खरीदा और बेचा, ये खरीदा और बेचा कई सारे टाइप्स के होते हैं। इंट्राडे, दैट मीन्स मॉर्निंग बाय एंड इवनिंग और आफ्टरनून सेलिंग। So this is a very risky thing, and this is a high tax slab. Tax slab, as per your own tax slab, delivery based trades is very good thing. What I do and what I recommend to everyone, we should always go for delivery based trades. That means today buy and sell after very long time. एक साल के बाद अगर बेचेंगे तो खाली 10% टैक्स लगेगा हमारे सारे प्रॉफिट के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म गेन यानी कि एक साल से कम में बेचेंगे तो 15% टैक्स लगेगा हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक और मेथड होता है ट्रेडिंग का जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि पैसा आता तो ज़्यादा है, पर जब जाता है तो बहुत ज़्यादा जाता है। हमारी सारा का सारा कैपिटल, हमारा सारा पैसा उसमें लॉस हो सकता है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग एक एक दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक लॉस किए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सो इट इज एक्सट्रीमली रिस्की थिंग, डोंट गो फॉर इट, एंड एज अ डॉक्टर वी शुड अवॉइड दिस ऑल ऑल्सो। स्टॉक्स को मैंने कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो उनके ग्रोथ के ऊपर कि वो कैसी ग्रोथ होती है, ऊपर नीचे जाते हैं या ग्रोथ ऑप्शन होते हैं, और एक होता है उनके लार्ज कैपिटलाइजेशन के ऊपर कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, बड़े हैं कंपनी है छोटी कंपनी है। सो देयर साइक्लिकल अपराइज, ग्रोथ स्टॉक्स, डाउन साइड जो नीचे जाते हैं, पेनी स्टॉक या चिल्लर स्टॉक्स। मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। ये एक चार्ट है साइक्लिकल अपराइज ग्रोथ स्टॉक का। इसमें हमें ये पता है कि ये कंपनी यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। सो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। हमें पता है कि कंपनी यहाँ तक अगर आएगी, हमने यहाँ पे उसको परचेज कर लिया, यहाँ पे उसको बेच दिया, तो हमें इतने कम समय में हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है आराम से। दिस इज गुड फॉर ट्रेडिंग बट रिस्की ऑल्सो। हमें जरूरी नहीं कि कंपनी ऊपर ही जाए, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है हमने जहाँ से लिया उसके भी नीचे चले जाए। तो दिस इज रिस्की थिंग। ग्रोथ स्टॉक, we should always search for these kind of stocks which is known as growth stocks, always going persistently upside in the long run। नीचे जाता है पर ऊपर भी जाता है, ज्यादा ऊपर जाता है कम नीचे आता है। तो देखो अगर यहाँ पे 20 साल के पहले अगर ये रेट था, उससे 100 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है 20 साल के बाद। इज इट अ गुड थिंग? यस। ग्रोथ स्टॉक्स वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज रियली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कंपाउंडिंग होती है आगे कुछ सालों के बाद। अगर हमको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% का रिटर्न मिल रहा है शेयर्स में, ये जो हर साल का रिटर्न होता है उसको CAGR बोलते हैं, कंपोजिट एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न। तो 20 साल के बाद हमारा 1 लाख 16 लाख रुपए बन जाएगा और 35 ईयर्स के बाद 1.33 करोड़ हो जाएगा अगर 15% की ग्रोथ हो रही है। तो अगर हमारा शेयर्स 20% की ग्रोथ दे रहा है तो आफ्टर 30 ईयर्स 2.37 करोड़ एंड 35 ईयर्स के बाद 5.9 करोड़ हो जाएगा। सोचो 1 लाख रुपए। यहीं अगर ग्रोथ रिटर्न हमारा 25% है, 25% इज फिनोमिनल ग्रोथ रिटर्न जो कुछ ही कंपनीज देती हैं। सो 35 ईयर्स के बाद हमारा 1 लाख 24 करोड़ बन सकता है। रिमेंबर 24 करोड़, कैन यू इमेजिन दिस थिंग? 1 लाख का 24 करोड़ 35 ईयर्स के बाद। बट पेशेंस इज की हमें उतने समय के लिए होल्ड करना है, हमें उसमें से एग्जिट नहीं करना है। आप सब उदय कोटक को जानते होंगे, या उदय कोटक का नाम तो सुना ही होगा, या कोटक महिंद्रा बैंक का नाम तो सुना ही होगा। उदय कोटक इज द फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अभी रिसेंटली उदय कोटक ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था कोटक महिंद्रा से। उसने ट्विटर पर अपनी स्पीच दी थी। उसने लिखा बहुत क्लियरली, लास्ट लाइन पढ़िए जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। ₹10,000 विद अस इन 1985 आर 300 करोड़ नाउ। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, द फिनोमिनल ग्रोथ वन बैंक हैज गिवन टू हिज इन्वेस्टर्स। जिसने कोटक महिंद्रा बैंक में 10,000 रुपए का शेयर्स लिया था 1985 में, आज उसकी वैल्यू दैट इज अराउंड 38 ईयर्स के बाद 300 करोड़ है। 300 करोड़, कैन यू इमेजिन द वैल्यू एक्चुअल कि एक बैंक एक इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट दिया है लोगों ने। सो कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ईयर 0 से, अगले 10 साल तक के वो बहुत बेसिक नॉमिनल रेंज पे चलता रहता है। तो हमें इतना पेशेंस तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा 10 साल का। बट इसके बाद जब ग्रोथ होती है तो फिनोमिनल ग्रोथ होती है। कंसेप्ट ऑफ CAGR जैसे मैंने बताया कि एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखा चुका हूँ। जितना ज्यादा CAGR होगा उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें लॉन्ग टर्म में। रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी इन भारत। इट इज प्रेजेंट इन मार्केट फॉर मेनी डिकेड्स। इट इज ग्रोइंग परसिस्टेंटली। आप शायद यकीन माने या ना माने, बट हम सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा रिलायंस हर जगह है।
तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई रिलायंस का प्रोडक्ट यूज करते होंगे या कर रहे होंगे, करते हैं. सो इवन एट द पीक वैल्यू इन्वेस्टमेंट, सपोज को जिस समय रिलायंस बहुत ही महंगा शेयर था 2000 में, उस रेट पे अगर किसी ने लिया, आज 23 साल के बाद रिलायंस इज एबल टू गिव 15% रिटर्न पर ईयर आफ्टर 23 ईयर्स, इवन जबकि सबसे लोएस्ट प्राइस हमने कैलकुलेशन किया है. तो सी बैंक में रिटर्न मिलता है 7 to 8% का, आपका एफडी का है. रिलायंस ने 15% दिया है. एनीथिंग विच इज मोर देन 10% इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. एनीथिंग मोर देन 15% वी शुड गो फॉर इट. 20% और 25% का जो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का रिटर्न, दैट इज समथिंग यू गेट बाय लक. So we should go for a thing which is giving more than 15% return or 20% return CAGR persistently for many years. And remember this thing, it is a very good investment. So stay invested in good companies for longer periods. Do not sell. अगर किसी ने रिलायंस को सेल कर दिया होता तो आज उसको इतना रिटर्न नहीं मिलता. There are many examples of good companies like Reliance, TCS, HDFC Bank, ITC, Infosys, etc. etc. So आप सबके लिए एक्सरसाइज क्या है, आप सब कैसे सर्च कर सकते हो. खाली टॉप 100 कंपनीज को देखो भारत की, सिर्फ टॉप 100 कंपनीज एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको स्टडी करो. उनमें देखो वो भारत की टॉप 100 कंपनीज इसलिए हैं कि वो परसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं. अगर वो ग्रो कर रही है तो वो अच्छी कंपनी होंगी, अच्छी कंपनी होंगी तो आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो. सिंपल सा फंडा है, कुछ ज्यादा खास चीज थोड़ी बता रहा हूँ मैं. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज एज पर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया. सो निफ्टी क्या होता है कि निफ्टी जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसिटिव इंडेक्स है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है, जो सबने सुना होगा. निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है. निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स हैं इंडिया के, जो टॉप 50 कंपनीज हैं. तो मैं आज इसका लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ आपको. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी. निफ्टी देखिए 1991 में स्टार्ट हुआ था और उस समय जो है 300 के आसपास चल रहा था. आज वो निफ्टी है 20,000 के आसपास. सो एक अगर 300 रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट किया होता, आज वो 20,000 है आफ्टर द स्पेन ऑफ 30+ years and with a composite annualized return of more than 12%. 12% is a very good return in the index thing. So Nifty is giving that 12% return. अगर हम निफ्टी कंपनीज में खाली इन्वेस्ट करें तो हमें 12% के ऊपर का रिटर्न आज तक मिल गया होता 33 ईयर्स में. निफ्टी में कैसे या सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं जिसको हम डेली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे निफ्टी 20, HDFC सेंसेक्स एक्सेट्रा. या कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो निफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और या फिर निफ्टी के डेरिवेटिव्स होते हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं जो रिस्की होते हैं. ये डाउनसाइड स्टॉक्स का चार्ट है. इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि स्टॉक जहां से शुरू होता है वहां से बस लगातार नीचे ही जा रहा है. सो ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें. मार्केट में बहुत हाइप होती है कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, हमेशा ऊपर जाएगी, ऐसा कभी भी मार्केट के शोर के ऊपर मत जाएं. हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपना स्टॉक सेलेक्ट करें. पेनी स्टॉक्स यानी कि चिल्लर स्टॉक्स, ये 10 रुपए से कम की वैल्यू होती है इनकी शेयर्स की. ये इसीलिए चिल्लर है क्योंकि इनकी वैल्यू 10 रुपए से कम है, इसीलिए पेनी स्टॉक्स हैं. इनको छोड़ दें, अवॉइड करें. बिकॉज अच्छा, जब भी आप इनमें इन्वेस्ट भी करते हैं आप ये सोचते हैं कि जल्दी इसमें 10 पैसा भी बढ़ेगा तो 1% या 2% का रिटर्न मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. आप जब इनको बेचने जाएंगे हो सकता है कोई खरीदार ना हो, बिकॉज दे हैव अ लो लिक्विडिटी. सो दीज आर एक्चुअली ट्रैप मटेरियल बाय ऑपरेटर्स. डू नॉट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स. जैसे मैंने पहले बताया था मार्केट कैप के हिसाब से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप. Reliance, TCS, HDFC, ITC are large caps. There are many small caps and mid caps also too. I have huge respect for all these people. They are wealth creators of Bharat. They are giving phenomenal returns to their shareholders. But to those shareholders who are staying with them, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो या रतन टाटा हो, नारायण मूर्ति हो, अजीम प्रेम जी हो, दीपक पारेख, उदय कोटक, आनंद महिंद्रा, शिव नादर, राहुल बजाज, गौतम अडानी, यार मतलब phenomenal person. Huge returns they have given to their shareholders. So invest in good companies. What to buy? अच्छा हाँ, सब लोग मुझसे ये जरूर से पूछते हैं कि क्या खरीदना है, what to buy. मैं सबसे बोलता हूँ सिर्फ एक चीज, अपने आसपास देखो, कहीं कुछ मत देखो, सिर्फ अपने आसपास देखो. आप जो चीज यूज कर रहे हो वो खरीदो. आप सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, देखो कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो. आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसका पैकेट पलट के देखो कौन सी कंपनी का है. जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे वो प्रोडक्ट अच्छा होगा. आप डेली नहाते हो, साबुन या बॉडी वॉश यूज करते हो, कौन सी कंपनी का यूज करते हो, दैट कंपनी यू शुड इन्वेस्ट. ब्रेड खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, घर में पेंट लगवाते हो, सीमेंट यूज करते हो, फर्नीचर है, बुक्स है, मोबाइल है, जो भी चीज आप यूज करते हो खाली वो चीज आप खरीद लो, दैट विल गिव यू रिटर्न. भारत हैज मेनी शाइनिंग सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मतलब वी आर द सप्लायर ऑफ IT field to the world. We are supplying software. We are supplying software personnel to the world. So we are the small IT hub of the world also.
Pharma sector, we are a pharma capital of the world. We are supplying medicines across the world in all the continents. Our medicines are going. Our banking system is very robust. It's a very shining sector. Our banks are fail to fail. They will almost never fail because of the stringent and robust policies by our government and reserve banks. NBFCs, that means the non-banking financial corporations, these are also very properly governed. FMCG or consumer goods, as our population is increasing, the consumption is increasing. So do not think that population increment is bad for the economy or bad for the country. No, I take it on the other side that increase in the population, in, increase in the consumption, and that is why the share market and share prices also keep on increasing. तो शेयर मार्केट के बारे में मैंने बेसिक बता दिया है. अब मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में. म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़ी कंपनीज या बहुत बड़े बड़े बैंक से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये दो टाइप के होते हैं. एक तो तुम्हारा म्यूचुअल फंड तुम डायरेक्टली परचेस कर सकते हो SIP करके, और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आप डेली शेयर मार्केट से परचेस कर सकते हैं. So there are many types based on their financial categories like equity, hybrid, debt funds, solution oriented, others. So equity means they invest more in the equity यानी कि shares, stocks. Hybrid fund जो equity और bonds दोनों में invest करें. Debt funds जो खाली bonds में invest करते हैं या government securities में. Solution oriented, अलग अलग टाइप के solution oriented funds भी आजकल लॉन्च किए गए हैं. और कुछ एक फंड्स ऐसे होते हैं जो फंड्स के ही अंदर इन्वेस्ट करते हैं. म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली लेडीज या जो है जितने भी न्यू कमर्स हैं. म्यूचुअल फंड्स के दो प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान. रेगुलर प्लान को कभी भी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे लिखा नहीं जाता है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए. तो हमेशा डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का रेट अलग होता है, रेगुलर प्लान का रेट अलग होता है. सेम म्यूचुअल फंड टाइप यू विल हैव टू प्लान्स, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान. डायरेक्ट मतलब हो गया जैसे नाम में लिखा हुआ डायरेक्ट, डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनी. रेगुलर इज वाया ब्रोकर, बीच में कोई ना कोई कमीशन एजेंट है जो आपसे कमीशन ले रहा है. हमें पता नहीं लगता है, पर वो कमीशन हैवी होते हैं लॉन्ग टर्म में. तो ये तो दो प्लान्स हो गए. दो ऑप्शंस होते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन और एक डिविडेंड ऑप्शन. म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन शेयर्स में इन्वेस्ट करती है उससे उसको डिविडेंड मिलता रहता है हर साल. अगर वो डिविडेंड अपने IDCW यानी कि डिविडेंड ऑप्शन रखेंगे तो वो आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा. बट आई ऑलवेज गो अगेंस्ट दिस थिंग. डिविडेंड कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए. अगर आप ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी उसी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करती है, ग्रोथ ऑप्शन बनाती है. तो डायरेक्ट प्लान एंड ग्रोथ ऑप्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज. SIP सबने नाम सुना होगा, बट SIP होता क्या है? SIP जस्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चाहे आप डेली करें, वीकली करें, 15 दिन में एक बार करें या महीने में एक बार करें, बट सिस्टमैटिक प्लान है ये चलता रहेगा. इट गिव्स एक्सट्रीमली गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरेज. जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया था कि निफ्टी ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, तो वैसे ही SIP है. जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ा महंगे रेट में मिलेगा, पर जब नीचे जाएगा तो हमें सस्ते रेट में मिलेगा. तो हमेशा इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता. नीचे जाएगा तो हमें एवरेजिंग अच्छी होती रहेगी, अच्छा रेट मिलता रहेगा. कैसे स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड्स को? पहले तो फंड एक सेलेक्ट करो. आप अलग अलग डेटा से, सोर्सेज से एक्यूमुलेट करो डेटा को, और उस फंड की कंपनी पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन बनाओ. वहां पे उस फंड को जो है सर्च करो, सेलेक्ट करो, उसकी SIP स्टार्ट करो और मैंडेट दे दो, जो आपके बैंक से आजकल इजीली हो सकता है. और या फिर ब्रोकर्स जो डायरेक्ट प्लान देते हैं, जैसे कि जीरोधा जिसमें मैं करता हूँ, तो उसके थ्रू फंड को सेलेक्ट करके उसमें डायरेक्ट प्लान ऑप्शन कर सकते हैं. और या फिर आप डायरेक्टली आपके घर के पास में कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का ऑफिस हो, ध्यान रखना म्यूचुअल फंड कंपनी का, म्यूचुअल फंड के बैंक का नहीं. बैंक वाले ब्रोकरेज लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी का ऑफिस हो, वहां पे जाना है. तो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज start SIP in mutual funds as early as possible. Always select direct plan and growth option. अगर आप 5,000 की SIP करते हैं, 15% का एक नॉमिनल रिटर्न रहेगा. 30 साल के बाद वो 5,000 हर महीने का आपका 2.82 करोड़ का एवरेज हो जाएगा. कैन यू इमेजिन दिस फिगर? हर महीने 5,000 रुपए डिपॉजिट करना है म्यूचुअल फंड में, और 15% का अगर उसमें रिटर्न आ रहा है एवरेज पे पर ईयर का, तो दैट विल बिकम 2.8 करोड़ आफ्टर 30 ईयर्स. इट इज पॉसिबल. थोड़ा बताते हैं अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में. टर्म इंश्योरेंस, इसको LIC पॉलिसी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें. दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग. ये खाली एक चीज के लिए होता है कि जब हमारी डेथ हो जाए या इवेंचुअलिटी हो जाए, तो हमारे डिपेंडेंट्स को कोई लोन ना पे करना पड़े जो बहुत हैवी हो सकते हैं.
क्योंकि सपोज को हमने घर अगर लिया लोन पे तो 2 करोड़ 3 करोड़ का हाउसिंग लोन हो जाता है। अगर 1-2 साल के बाद ही कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है लोन बियरर की, तो जिस बैंक से लोन लिया वो तो आपसे लोन रिकवर करेगा। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपको वो अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप लोन चुका सकते हैं। बर्डन शुड नॉट फॉलो ऑन डिपेंडेंस, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे लाइफ में उतना कम प्रीमियम लगेगा हमेशा के लिए। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स हो जाता है फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, जब आप स्टार्ट करें तभी प्रीमियम फिक्स हो जाता है। सो अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं डेफिनेटली आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और एक अच्छे अमाउंट का लीजिए, कम से कम 2 करोड़ या 3 करोड़ का मिनिमम। जितने राइडर्स होते हैं एक्सीडेंट राइडर्स एक्सेट्रा, वो सब भी राइडर्स एप्लीकेबल जो होते हैं वो आप सब लीजिए, जरूरी होते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस, हम डॉक्टर हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे शहर में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे हमको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा या मिल सकता है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है, इस कंसेप्ट को दिमाग से निकालिए। मेडिकल इंश्योरेंस सबके लिए नेसेसरी है, भले आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो या इवन अगर आप हॉस्पिटल के ओनर हैं तो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस जरूर से रखना है। टेक अ गुड कवर फॉर 10 लाख और मोर, मिनिमम 10 लाख से कम का इंश्योरेंस कभी मत लीजिए। फैमिली फ्लोटर लीजिए जिसमें आपके सारे फैमिली मेंबर्स कवर्ड हों। जितने भी राइडर्स उस इंश्योरेंस कंपनी के हों वो जरूर से लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। अच्छी इंश्योरेंस कंपनी, आई प्रेफर प्राइवेट इंश्योरेंस एंड अ गुड इंश्योरर विद अ सुपर टॉपअप पॉलिसी टिल 1 करोड़। हमने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया और उसके ऊपर 1 करोड़ तक की सुपर टॉपअप ले लिया तो हम निश्चिंत रहते हैं कि हमें अपनी पॉकेट से कुछ भी अगर सडनली होता है तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, हॉस्पिटल ओनर सोचते हैं कि मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मेरे को सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, मैं क्यों खर्चा करूँ मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। आप ट्रेवल करते हैं, क्या पता आपको कहीं पे भी भगवान ना करे बट हार्ट अटैक आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी इशू हो जाए, सीवीए हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? वहाँ पे नजदीक के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है, आपके पास मतलब उस समय पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा? ये सारे इश्यूज होते हैं एंड दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज। सो एवरीवन शुड हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी विद अ गुड कवर। सपोज एक और कंसेप्ट है मेरा, at my stage of being a consultant for more than 10 years and at a high end hospital, तो मैं खुद अपने लिए ऐसा ट्रीटमेंट सेलेक्ट करूंगा जो कि लग्जरियस ट्रीटमेंट हो। मैं क्यों जो है किसी से बोलूं कि मेरे को जो है भाई पैसे कम कर दो या मेरे को जनरल वार्ड में रखो जिसमें पैसा कम लगे, मैं क्यों ऐसा काम करूं? मैं खुद अपने लिए अगर ट्रीटमेंट ऑप्ट करूंगा तो मैं तो डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम में लूंगा या स्वीट रूम में लूंगा। तो दैट इज ऑल्सो अनदर कंसेप्ट दैट आई हैव, क्योंकि अगर हम पैसा कमा रहे हैं और अपने ही ऊपर पैसा खर्चा करना नहीं सीखते हैं, कुछ फायदा नहीं उसका रख। So good medical insurance is a very important thing. Same time planning for retirement. PPF is a good thing for depositing. You can deposit maximum 1.5 lakhs per year. ये अच्छी बात होती है कि इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड वी गेट अ टैक्स रिबेट ऑल्सो। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, पर टायर 1 में खाली 50,000 पर ईयर एडिशनल टैक्स रिबेट मिलती है। तो पीपीएफ में 1.5 लाख और एनपीएस में 50,000, यानी कि 2 लाख रुपए साल का तो हम टैक्स बचा ही सकते हैं खाली पीपीएफ और एनपीएस से। अवॉइड एलआईसी पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने एलआईसी पॉलिसी में पैसा लगाया हो और वो रिच बन गया हो। एलआईसी पॉलिसी सिर्फ उनके कमीशन एजेंट्स को रिच बनाती हैं, इन्वेस्टर्स को नहीं। सो हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, अभी स्पेंडिंग मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी थोड़ा जरूरी है जानना। स्पेंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग बूस्ट्स आवर इकोनॉमी। अभी रिसेंटली जो है दिवाली हुई थी, तो दिवाली पे कैन यू इमेजिन कि इन आवर ओन कंट्री भारत में 25 टन यानी कि 25,000 करोड़ या 40,000 करोड़ का तो खाली गोल्ड बिका था। एंड द ओवरऑल सेल अक्रॉस द कंट्री वाज मोर देन 4 लाख करोड़। सोचो हमने एक ही फेस्टिवल पे इतना बड़ा खर्चा किया, यस स्पेंड किया, इकोनॉमी बूस्ट हुई, हमारे पास जो भी शेयर है उसका मार्केट से लिंक है। तो अगर स्पेंडिंग होती है, लोग स्पेंड करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। हमारे पास अगर वो शेयर, उसका प्राइस इंक्रीज होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। सो स्पेंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ आवर ओन इन्वेस्टमेंट्स। रिमेंबर फेस्टिवल्स आर अ बून टू आवर भारतीय इकोनॉमी। एंजॉय लाइफ, इट्स ओनली वन। पैसा बस बचा बचा के रखने का कोई सेंस नहीं है, पैसा लगातार खर्चा करते रहिए, पैसा खर्चा करते रहेंगे, पैसा आता भी रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। Earning and not spending is actually useless. If you can't spend on your own self, no point in earning to boss. So read and study, do your own research, read more and more. There are many resources like books, newspapers and magazines you can find anywhere. There are many websites like National Stock Exchange website, Bombay Stock Exchange website, Money Control, Money Rediff.
ET, screeners, Zerodha Varsity, etc. etc. अवॉइड फ्रॉड, बी रियलिस्टिक। कई बार आपको कॉल्स आती हैं कि आप इसमें पैसा लगाओ, गारंटीड रिटर्न मिलेगा, इतना जल्दी इतना ऊपर चला जाएगा, कोई रिस्क नहीं है, 1 महीने में डबल हो जाएगा। ये सब आपका पैसा खाली बर्बाद करने के लिए है। कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर यकीन मत करें। सिर्फ और सिर्फ रिलायबल पर्सन्स के ऊपर यकीन करके उनकी एडवाइस पे पैसा लगाएं या खुद की रिसर्च से पैसा लगाएं। टेक होम messages. These are the last slides. Do not neglect your profession. It is your primary source of income. इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इतना भी ना घुस जाए कि आप अपने प्रोफेशन को ही नेग्लेक्ट करने लगे। ये काम कभी नहीं करना है। नेवर नेग्लेक्ट फैमिली। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। गिव देम सफिशिएंट टाइम। मेंटेन रिलेशंस एंड मेक फ्रेंड्स। कीप ऑन स्पेंडिंग मनी लाइक ट्रैवल, लेजर, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ सेटअप और सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन एजुकेशन। पे योर ऑल बिल्स इन टाइम। कभी भी ये मत करना कि बिल्स को पेंडिंग रखो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। तो बिल्स को टाइमली पे करते रहेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहेगा। ऑल इन्वेस्टमेंट्स हैव रिस्क, हमेशा याद रखेंगे। ट्रस्ट रिलायबल पीपल। स्टार्ट अर्लीस्ट इन लाइफ। आपका 18 साल की उम्र हो गई, आपके बच्चों की, मेरा बेटा 17 साल का है, नेक्स्ट ईयर वो मतलब अभी से रेडी है कि वो जैसे 18 साल का हो उसका पैन कार्ड आ जाए, वो अपने आप इन्वेस्टमेंट अपने बेसिस पे करना स्टार्ट कर दे। सो स्टार्ट अर्लीस्ट इन लाइफ टू गेट द बेस्ट एडवांटेज। Try to make a will early in life. Accept that we will also become old. That is the reality of life. So proper investment करना चाहिए कि old age में हमारे पास एक अच्छा network हो, so that we can spend our old age properly, but never be dependent on others. So that's all. Thank you so much for Brendos and Dr. Sudhi and others for patient listening and inviting me here. Thanks a lot. Any questions and queries are welcome. It was a wonderful lecture, Ritesh. Treat to the ears. Learned a lot from you. बहुत कुछ सीखा मैंने. I'm very thankful he is in the middle of a conference and in between he joined. He once he joined, we talk to him. अच्छा रितेश बताइए, एक तो आपने कहा पेनी स्टॉक्स, ये पेनी स्टॉक्स ये चिट फंड स्टॉक्स, क्या ये सेम होते हैं या कुछ डिफरेंट है? चिट फंड अलग चीज होती है। चिट फंड एक्चुअली क्या है कि जो अच्छे स्टेटा के लोग होते हैं वो चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटा के लोग होते हैं वो इनमें फंसते हैं। चिट फंड कंपनी जो होती है वो इनको झांसा देती है कि हम इतने पैसे में आपका पैसा इतना डबल कर देंगे या इतना पैसा आपको रिटर्न करेंगे, तो वो इसमें फंस जाते हैं। चिट फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली ट्रैप मटेरियल है। चिट फंड कंपनीज आर डिफरेंट देन स्टॉक मार्केट। पेनी स्टॉक्स होते हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, पर वो कंपनीज का जो वैल्यू है वो एक शेयर की 10 रुपए से कम होती है। तो अभी क्या है कि आप इतनी कम वैल्यू वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, आप ये सोचोगे 10 रुपए का हमको 11 रुपए भी हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। वो 10 रुपए से कम के इसीलिए कि वो उसी लायक हैं। ओके ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से चिट फंड्स हैं, ये जो कंपनी लाइक फॉर सहारा में वो डायरेक्टली वो कंपनी खुद बेचती है, अपनी छोटी छोटी सी गरीब लोगों को बेचती है। ये जो है स्टॉक मीडियम टाइप के जो स्टॉक मार्केट से भी लेना चाहते हैं लेकिन सस्ता लेना चाहते हैं, तो कई बार वो इनके चांसों में फंस जाते हैं पेनी स्टॉक्स। चिट फंड कंपनी जितनी भी है सब लोग हैं, जैसे कि आपका शारदा चिट फंड स्कैम आपने सुना होगा, सहारा का स्कैम है, सब स्कैम्स में ही एंड होते हैं एक्चुअल में। Okay, very got your point, Ritesh. Okay, so Dr. Pranav Gupta is now with us. Dr. Pranav. Yes, I am here, ma'am. हाँ, Dr. Pranav, आपने प्रेजेंट डॉक्टर रितेश का सुना होगा, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट? हाँ, सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. इट वाज extremely good, and I would again like to say about the take home message कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें. अगर आपको नहीं पता तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लें, बट स्लोली एंड स्लोली गेन करें उस नॉलेज को एंड देन शिफ्ट टू डायरेक्ट फंड्स. म्यूचुअल फंड इज द रूट until unless you have the complete knowledge for shares, and do not go for any other options like chit fund या और कोई जो लॉबीज होती हैं, LIC पॉलिसीज होती हैं. सो दैट इज आई थिंक द टेक होम मैसेज. एंड द शेयर्स लेते हैं उसका सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. दोज हु आर डूइंग इट कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से, एंड इट वाज एक्सट्रीमली नाइस प्रेजेंटेशन. थैंक यू सर. Okay. Thank you so much. Ritesh, actually there is a question. Yes, I have read the question. And I would like कि Dr. Pranav और दोनों, हाँ, डॉक्टर प्रणव एंड डॉक्टर रितेश दोनों इस क्वेश्चन को देखें और अपने अपने पॉइंट्स दें. सो डॉक्टर अभिनंदन प्रतीक हैज posted a question. If I have medical insurance from 2 companies with each providing coverage of 3 lakhs,
Can a combined coverage of 6 lakh be used in case required? ठीक है, अब मैं आपको डॉक्टर सुधी एक जो है एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का एक बेसिक फंडा होता है, जो मैं बेसिक बता रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का एक बेसिक फंडा होता है, जितने लाख का इंश्योरेंस होता है उसका 1% पर डे का आप बेड ले सकते हो। अगर आप 3 लाख का इंश्योरेंस अवेल करते हो तो आप 3000 पर डे का बेड ले सकते हो। 3000 में यहाँ पे सिर्फ जनरल बेड आते हैं, तो यानी कि आपको जनरल बेड में एडमिशन लेके जनरल बेड के हिसाब से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अब एज अ डॉक्टर क्या आप चाहोगे कि आप जनरल बेड में एडमिट करो? कभी नहीं। तो अगर 6 लाख का इंश्योरेंस होता है तो आपका 6 लाख में आपको 6000 पर डे का बेड मिल होगा, जो कई हॉस्पिटल्स में आपको सिंगल रूम और कुछ हॉस्पिटल्स में ट्विन शेयरिंग रूम भी मिल जाएगा, जो बहुत हाई अच्छे रूम्स होते हैं। तो उसमें अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ट्रीटमेंट लेते हुए। तो डेफिनेटली 3 लाख प्लस 3 लाख का इंश्योरेंस मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। हमेशा 6 लाख या बेटर है कि 10 लाख से ऊपर लें, जिसमें आप खुद के लिए सिंगल रूम तो ले सकते हैं, क्योंकि 10 लाख का इंश्योरेंस का मतलब है आप 10,000 का पर डे का बेड अवेल कर सकते हैं, जो सिंगल रूम हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। Okay, so I hope Dr. Abhinandan आपका आंसर आपको मिल गया होगा. So Ritesh, now I have another question. So many ladies they invest in gold, है ना? तो गोल्ड एक बहुत ही पुराना और बहुत ही टाइम टेस्टेड वो है. अब इसमें इश्यूज आते हैं कि क्या गोल्ड डायरेक्टली गोल्ड के कॉइन्स खरीदें, गोल्ड के ब्लॉक्स खरीदें, या ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदें, या गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं. तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, गोल्ड का मेन 2 कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, एक फिजिकल गोल्ड और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, मैं जो स्टॉक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जैसे गोल्ड बीस, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आप डेली बेसिस पे परचेज कर सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का बेनिफिट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है टाइम टू टाइम। अभी रिसेंटली रिलीज किया था, तो जब आता है तो आप 10 ग्राम या 20 ग्राम का गोल्ड उसमें, या जितना भी आपकी लिमिट आप उसको खरीद सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बेनिफिट है कि उसमें 2.5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता रहता है एक्स्ट्रा, यानी कि गोल्ड का वैल्यू तो आपका बढ़ ही रहा है और उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स्ट्रा। 8 साल के बाद वो बॉन्ड फिनिश हो जाएगा, आपको पैसा आप रिडीम कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको जो है, जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स में या गोल्ड पीस में मेकिंग चार्जेस नहीं है। ये मेकिंग चार्जेस हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल गोल्ड में हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि जिस ज्वेलर से हम खरीद रहे हैं वो कितना रिलायबल है। पता चल रहा है वो हमको बोल रहा है कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट और दे रहा है 18 कैरेट या उससे भी कम दे रहा है, तो ये रिलायबिलिटी नहीं होती है। दैट इज अ मेन कंसर्न विद द फिजिकल गोल्ड। तो ज्वेलरी आप खरीदेंगे, ज्वेलरी में यूजुअली जो अच्छे ज्वेलर्स होते हैं वो 10% का मेकिंग चार्जेस लेते हैं, टैक्स उस पर अलग लगेगा। तो दैट इज एक्चुअली हैवी अमाउंट वी आर पेइंग फॉर द एक्चुअल गोल्ड वी आर बाइंग। और ज्वेलरी का होता है कि कुछ सालों के बाद अगर आपको बेचनी है तो आपको रिटर्न उसके ऊपर अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम रिटर्न की बात करें तो अपने शौक के लिए है तो दैट इज वेल एंड गुड, ऑफकोर्स अपने शौक के लिए तो लेना ही चाहिए। बट अगर आप रिटर्न के पर्पज से ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें हमको रिटर्न सेम अमाउंट ऑफ मनी में कम मिलेगा और गोल्ड बॉन्ड्स में और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ज्यादा मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इस चीज को समराइज करूं कि जो गोल्ड है, गोल्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू गो फॉर गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि उसमें आप जितना पेपर पे मेंशन है, सपोज उन्होंने कहा 24 कैरेट है, तो वो 24 कैरेट की ही इवैल्यूएशन होगी, उसमें गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो होगा, प्लस 2.5% का एक एक्स्ट्रा उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आप जब तक वो पेपर अगर कुछ खो भी गए तो एटलीस्ट आपके डिजिटल होंगे, कुछ होंगे जिनसे आप वो कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं है जो आपको गोल्ड स्मिथ कह देगा, सुनार कह देगा कि इसमें इतना गोल्ड है, दैट आपको मानना पड़ेगा। फिर मेकिंग चार्जेस एक अच्छे खासे होते हैं। अगर आपको शौक है ज्वेलरी का तो आप उसको अच्छे से लेके और अपने शौक को पूरा कीजिए। फिर लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो गोल्ड बार या गोल्ड बॉन्ड में आप कर सकते हैं। गोल्ड बार में या फिजिकल गोल्ड में एक प्रॉब्लम है कि चोरी हो गया या कहीं मिस हो गया, खो गया, स्टोलन, तो वहां आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप गोल्ड को ज्वेलरी की तरह यूज कर रहे हैं अपने शौक के लिए, दैट्स अप टू यू। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो रितेश, देयर इज अनदर क्वेश्चन अबाउट प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे आते हैं, कॉल्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि वो कहते हैं कि फ्लैट्स रेडी हैं या प्लॉट्स बिक रहे हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेके, जिसमें कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चलो सपोज करो आपने आज एक घर खरीदा या आपने प्लॉट खरीद के घर बनवाया, आपकी उस पूरे प्लॉट और घर की नेटवर्थ आपने जो खर्चा किया वो है करीब करीब 2 करोड़, सब स्टैम्प ड्यूटी है, सब टैक्सेस मिला के सब कुछ आपने 2 करोड़ का खर्चा कर दिया।
ठीक, जब भी आप उसको बेचने जाओगे तो आपको उस प्राइस से ऊपर ही चाहिए। हमेशा आपको उस प्राइस से ऊपर ज़रूरी नहीं कि मिले ही मिले जो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस है। और प्लस जब भी आप बेचोगे, आप घर का खाली एक बाथरूम या एक किचन नहीं बेच सकते हो। आपको जब भी बेचना है, आपको सिंगल बायर ढूंढना ही पड़ेगा जो पूरा प्रॉपर्टी आपकी ले जाएगा। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद द प्रॉपर्टी सेलिंग। प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम चलो सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, ले ले, उसका रिटर्न इतना हो जाएगा। तो जब सेलिंग का टाइम आता है, जरूरी नहीं कि हमको उसमें सेलर मिले ही मिले। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग कभी भी उसको वैल्यू नहीं करते हैं। हम जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम अपना टाइम कंज्यूम करते हैं उस प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी हम लोग बाद में एक्चुअल में रिकवर नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम विद द प्रॉपर्टी। व्हेन वी आर कीपिंग अ प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत सारी चीज़ें जिसका हम लोग वैल्यूशन एक्चुअल में नहीं करते हैं बीइंग अ डॉक्टर। तो अगर उसका वैल्यूशन करेंगे तो हमें जब भी सेल करेंगे उतनी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी में एक और इशू आ रहा है, आपको मुंबई की रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, बच्चे यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को यूज कभी भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे आफ्टर द डिमाइज ऑफ देयर पेरेंट्स, जब वो प्रॉपर्टी में कोई रह नहीं रहा होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी का भी, और जिन लोगों ने 2-3-4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ले रखी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो सिर्फ डिस्पोज ऑफ ही करते रहनी है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, स्पेशली आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम बिताएं। अपनी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है, आप उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं, बच्चे हैं नहीं या कोई देखने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा रहता है शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे सब कुछ आपके सामने है, 2 सेकंड लगता है सिर्फ सेलिंग और बाइंग में। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी। मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी को मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करता, जिसके लिए है वो कर सकता है, बट वी शुड वैल्यू आवर स्ट्रेस, आवर टाइम एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो व्हेन वी आर सेलिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम व्हाट वी हैव टेकन द प्रॉपर्टी मेनी इयर्स बैक। Yeah, I totally agree with your point, Ritesh. And I would like to ask Dr. Pranav if he wants to add something. Then I may add few points of my some personal experiences. Okay, so Ritesh, now if I summarize, अगर मैं आपकी पूरी बात को summarize करूं, जो property है, सबसे पहले तो ये लिक्विड फंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा, एक तो सस्ती नहीं होगी, बहुत महंगी होगी, अच्छा खासा आप अपना जो सेविंग्स है उसमें इन्वेस्ट करोगे। दूसरे, अगर आपने सपोज 1 करोड़ 1.5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट कर दिया और सपोज एक खाली प्लॉट भी है, तभी भी अगर आपको पैसों की जरूरत हुई तो आप इमीडिएटली उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको एक राइट बायर चाहिए होगा जो जरूरी नहीं आपको उस वक्त मिले। आपने अपार्टमेंट खरीदा, कोई अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है तो जब आपको जरूरत होगी तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा बायर ना मिले, तो आप स्टक हो जाओगे, आपका पैसा फंस जाएगा। तो प्रॉपर्टी जब भी खरीदे, अगर आपको रहना है उसमें अपने अपने रेसिडेंशियल पर्पज से, तब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हो, अपना शानदार सा घर बनवा सकते हैं उसमें। या आपको उस प्रॉपर्टी से और मनी मेकिंग करनी है, आपको कोई अपना क्लिनिक खोलना है, अपना हॉस्पिटल खोलना है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रोजेक्ट उस पर स्टार्ट करना है, वो प्रॉपर्टी आपको पैसा देने वाली होनी चाहिए इमीडिएट। उसमें आपके पास प्लान होना चाहिए उसको खरीदते वक्त। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्लॉट खरीदूंगा उसके बाद फिर मैं उसको सिर्फ बेचूंगा, तो उसमें आपको हाउस टैक्सेस देने होंगे ईयरली, आपको उसका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं करना होगा, चाहे उसकी बाउंड्री बनवानी पड़े, चाहे उसके आपको प्रीवियस हाउस टैक्सेस क्लियर करने पड़े, और रजिस्ट्री चार्जेस होते हैं, तो आप बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आपका पैसा फंस गया है। तो कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो संभल के करें, सोच के करें कि क्या आप उसका यूज करने वाले हैं। और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो वो शायद एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। आप उस पर कुछ बनवा के आगे कुछ अपना तरक्की करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेगी, है ना? तो am I right in my interpretation? I fully agree with you. Would you like to? Thank you very much. Okay, so Ritesh, now there is Dr. Amit Rastogi sir हैं, indemnity insurance के Yes. बारे में सर कुछ जानना Sure. चाहते हैं, ये क्या होता है? मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मुंबई में हमारी एक कंसल्टेंट्स की एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स। तो हमारी एसोसिएशन में 13,000 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स मेंबर हैं। कैन यू इमेजिन, 13,000 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स। एंड हम लोगों ने शुरुआत, ये एसोसिएशन को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड हमारी एसोसिएशन इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हमारी खुद की लीगल सेल है जहाँ पे हमने एडवोकेट्स अपॉइंट कर रखे हैं, हमारे खुद के एडवोकेट्स हैं। तो उसके मुंबई में एक क्रेज़ है कि जो भी इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेगा वो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट यानी एएमसी से लेगा। इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा इंश्योरेंस जो आपको प्रोफेशनल लिटिगेशन और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस से बचाता है।
एवरी पेशेंट इज अ पोटेंशियल लिटिगेंट। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो आपको कल को कोर्ट में स्यू कर सकता है। अच्छा, कोर्ट को क्या होता है, जितना ज्यादा जो है वो क्लेम को जो है पास करते हैं, उतना ज्यादा उनको मजा आता है एक्चुअल में। तो डॉक्टर्स की तो इतनी इनकम होती नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया तुम इसको 1 करोड़ का हर्जाना दो या 1 करोड़ का कंपेंसेशन दो, कहाँ से कोई देगा? सो फॉर दैट पर्पज इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज देयर। सो इंडेमनिटी इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कल को कौन सी कोर्ट से कब कहाँ से न्योता आ जाए। मैंने अपना पर्सनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस 5 करोड़ का ले रखा है पर ईयर का। 5 करोड़ का इंश्योरेंस के लिए मेरा प्रीमियम जाता है AMC को कुछ 26,000 का प्रीमियम जाता है साल का। बट आई एम जो है गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ देयर होल लीगल टीम। सारा का सारा मेरा काम कैशलेस होगा। कुछ भी प्रोफेशनल लिटिगेशन अगर मेरे ऊपर होते हैं तो दैट माई एसोसिएशन विल बियर। बट ये प्रॉब्लम क्या कि ये मैं मुंबई में हूँ, इसलिए मुझे ये बेनिफिट है, इस सब जगह बेनिफिट्स नहीं है। तो आप लोगों की जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है लोकल, या तो IMA हो या आपकी लोकल एसोसिएशन हो वो, और या फिर आपका जो स्पेशलिटी एसोसिएशन है वो अगर इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रही है तो वहां से लीजिए, वो बेटर रहता है। अगर आप अपने लेवल से खुद से इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेंगे तो आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी तो कहेगी कि आप बिल सबमिट करो, हम बाद में पे करेंगे। यहाँ पे बिल तो आपके जो है लगेंगे लाखों के बिल, आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। सो बेटर है कि गो फॉर इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस। हाँ, इंडेमनिटी सबको लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बोले कि मुझे जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इंडेमनिटी सबको लेना चाहिए, स्पेशली सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स जो रिस्की जॉब्स में है, उनको तो मैंडेटरी है लेना। तो इंडेमनिटी लीजिए, अच्छे अमाउंट की लीजिए और अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन से लीजिए, वो अच्छा रहता है। गॉट इट रितेश। तो एक तो थोड़ा सा ये बताओ कि जो पॉलिसीज होती हैं, हाउ द कस्टमर, हाउ वी डॉक्टर्स डिसाइड और चूज विच इज द राइट कंपनी जो सही हमें क्लेम्स वगैरह दे, हमें कोई प्रॉब्लम ना करे। और सभी के जो चार्जेस होते हैं ये बहुत डिफरेंट भी होते हैं। हम कैसे चूज करें कि कौन हमें सही रेट पे सही चीज दे रही है, और जब हमें एक्चुअली जरूरत पड़ेगी तो वो हमको ज्यादा घुमाएगी फिराएगी नहीं और हमको बिल्कुल राइट क्लेम दे देगी। हम ये कैसे डिसाइड करें? ये आप कौन सी इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडेमनिटी, मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस? देखो तीनों इंश्योरेंस टर्म अलग अलग। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। हाँ, आप मेडिकल इंश्योरेंस का समझो, देखो इंडेमनिटी तो आप Okay. अपनी एसोसिएशन के थ्रू लोगे, तो उनके फिक्स जो है कंपनीज होती हैं, यूजुअली ओरिएंटल या जो है 1-2 कंपनी से जो इंडेमनिटी देती हैं, तो वो आप अपनी एसोसिएशन के थ्रू ले लो, उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड कंडीशन चलेंगे, कोई इशू नहीं है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो व्हाट आई डू एंड व्हाट आई प्रेफर कि ऑनलाइन लो, इसमें कमीशन एजेंट का काफी कमीशन बचता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, टेक फ्रॉम गुड कंपनी। अभी ऐसी कंपनी हमको लेनी चाहिए जिसका कवरेज ऑलमोस्ट ऑल द बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो, ये बहुत जरूरी है। सारे के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में उसका कवरेज होना चाहिए। जैसे मैं लीलावती में हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन VIP हॉस्पिटल इन इंडिया। सो अब जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर लीलावती में दे रही है या बॉम्बे हॉस्पिटल में दे रही है या वोखार सेफी रहेजा में दे रही है, तो कितनी अच्छी कंपनी है। प्लस उस कंपनी का जब वो क्लेम होगा, जब कैशलेस में क्लेम होगा, तो उसमें डिडक्शंस ना हो। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज जो न्यू इंडिया या ओरिएंटल है, इनमें डिडक्शंस बहुत होते हैं, इनमें को-पे के क्लॉजेस होते हैं, डिडक्शंस बहुत होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का पैसा पे नहीं करते हैं। सपोज करो टोटल बिल बना डिस्चार्ज के टाइम पे 3 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी कहे कि हमारी कैपिंग तो 1.5 लाख की है, तो 1.5 लाख पेशेंट अपनी पॉकेट से बियर करेगा। भले आपका सम इंश्योर 3 लाख या 4 लाख का हो, बट इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा पैसा देती नहीं है जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, जैसे कि नीवा बुपा, ICICI लोम्बार्ड, HDFC अर्गो केयर एक्सेट्रा, तो ये अच्छा, या बजाज अलायंस, ये सब अच्छा पेमेंट करती हैं। ये ऑलमोस्ट बिल का सारा पेमेंट कर देती है, कुछ हज़ार को छोड़ के जो नॉन पेबल आइटम्स होते हैं। तो मेरा खुद का जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं हालांकि रिकमेंड सबको नहीं करूँ कि मेरी कंपनी लें, बट मेरा का एक्सपीरियंस अच्छा रहा नीवा बुपा का। तो कैशलेस भी है। मेरा किसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी हुआ कोविड की वजह से, या उसके बाद भी एक बार एडमिट होना पड़ा था, मेरे बच्चों को भी, तो सब कुछ कैशलेस हो गया। मेरे पॉकेट से जो है हार्डली 2-3 हज़ार रुपये पेमेंट करना पड़ा, जो कि हॉस्पिटल ने मेरी गुडविल की वजह से वो भी जो है माफ कर दिया मेरे को। तो ऑलमोस्ट मेरे को 0 पेमेंट करना पड़ा। गुड प्राइवेट इंश्योरर, अच्छा अमाउंट मेडिक्लेम का, तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादा प्रीमियम होगा तभी तो हमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट अपने ही ऊपर तो हमको ज़्यादा प्रीमियम खर्चा करना चाहिए ना, क्योंकि हम अपने ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो वी डॉक्टर्स को हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। ये एक तरह से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने मनी को, कि सपोज इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, सपोज अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा किसी भी कारण से, या कोई सडन डिमाइस होता है, तो एटलीस्ट उस वक्त आपके पास जो जमा पूंजी है, जो सेविंग्स है, वो ड्रेन आउट ना हो।
तो एक तरह से हम उसको कैप कर देते हैं, हम उसको कवर, एक अम्ब्रेला हम प्रोवाइड कर देते हैं विद ईच इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस होता है, ये किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए हमने अपने मनी को एक कवर दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा रितेश, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक जब हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाते हैं किसी, क्योंकि ये जो मेडिक्लेम पॉलिसीज है ये एक तरह से ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम सेव कर सके अपनी सेविंग को, जब हमें जरूरत पड़े तो हमें हमारी सेविंग ना निकले उस मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर वन, हमें अपने परिवार का सबका एक साथ कराना चाहिए। Yes. So all the possible family members, you should take one single policy with a family floater. जैसे मेरी पॉलिसी में मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडेड है, सो फैमिली फ्लोटर इज द बेस्ट ऑप्शन। देन अ गुड सम इंश्योर्ड मिनिमम 10 lakhs, बेटर टू गो फॉर 15 or 20 lakh प्लस, ताकि हम किसी भी रूम में जो है अपने आप को एडमिट करा सकते हैं। हमको कभी कल को ये बाउंडेशन नहीं होगी कि हमको जो है डीलक्स रूम नहीं मिल रहा है, या डीलक्स रूम हमको हमारी ऑप्शन डीलक्स रूम के पर हमको वो नहीं मिला बिकॉज ऑफ द कैपिंग ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सो हम एक अच्छे रूम में ट्रीटमेंट अवेल कर सकें। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है ये बोलने के लिए, या हॉस्पिटल ओनर को कि अरे भाई हमारी पॉलिसी इतने कम की है बट हमको ऊपर अपग्रेड कर दो, हम क्यों बोलें किसी को। एंड इसके ऊपर एक सुपर टॉपअप लेना चाहिए, सुपर टॉपअप टिल द मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 crore। सपोज करो हमारा जैसे लिवर ट्रांसप्लांट या कैंसर ऐसे डिजीज है जिसमें लाखों रुपए खर्चा होते हैं, लाखों रुपए खर्चा होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में करीब 30-35 लाख रुपए बहुत आराम से खर्चा होता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए तो। वैसे कैंसर के ट्रीटमेंट या डायलिसिस एक्सेट्रा है जिसमें बहुत हैवी खर्चे होते हैं। तो अगर आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद भी खर्चे आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको आगे के खर्चे के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो सुपर टॉपअप यहाँ पे काम आता है। तो जब आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया उसके बाद आप सुपर टॉपअप यूज कर सकते हैं टिल द सम इंश्योर्ड लिमिट, जो मेरा 1 crore तक का है। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रीमियम है वो कम से कम कैसे लगे। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हो तो डेफिनेट सी बात है कि उसका कमीशन लगेगा। तो मेरी अपनी पॉलिसी सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन पॉलिसी लेने का बेनिफिट है कि प्रीमियम बहुत कम लगता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, इसको पाया है। एंड 25% की ट्यून में जो है कमीशन एजेंट्स का कमीशन होते हैं। एंड कवरेज, Okay, so which side do you? कवरेज आपको देखना है कि मैक्सिमम। Okay, got it. So you suggest, you recommend कि हम पॉलिसी बाजार पे जा सकते हैं, मतलब कि ये एक अच्छा सा साइट है जिसको हम पॉलिसी बाजार कंसीडर में कर आप सकते कंपेयर हैं। करिए सबको, और फिर उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप उस कंपनी में लॉगिन बना के उससे पॉलिसी ले लीजिए। ओके, गॉट योर पॉइंट। अच्छा अभी ये बताइए कि अभी कुछ इंसिडेंसेस हुए, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अराइज हुए जिसमें कि जो इंश्योरेंस होल्डर था उसका डेथ हो गया, टर्म इंश्योरेंस था, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेने ये एक हाउस लोन लेने के विद इन 1 month 2 month that that person died due to some reason and to some acute illness. तो that house loan का क्या होगा? इस देखो तरह के लोन जैसे अगर कोई लेते हैं तो क्या वो या टर्म इंश्योरेंस अगर है तो दैट मच अमाउंट दे विल पे विद इन 1 से 2 महीने के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है, या कोई कैपिंग होती है कि इतने समय तक नहीं है? हाँ, नहीं, टर्म इंश्योरेंस में यूजुअली क्या होता है कि जितना लिमिट का टर्म इंश्योरेंस है, पर्सन की डेथ के बाद उसके जो डिपेंडेंट्स या नॉमिनीज को मिल जाता है अगर पेपर्स प्रॉपर सबमिट किए हों। और जब टर्म इंश्योरेंस लिया गया है उस समय कुछ भी हाइड ना किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हम लोग जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हाइड कर लेते हैं कि हमको ये नहीं, यही नहीं है। जब टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है तो कंपनी आपका खुद से मेडिकल चेकअप कराती है, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तभी आपका पॉलिसी इशू करती है। तो एक बार पॉलिसी इशू हो गई उसके बाद अगर, और उसमें एक किसी कंपनी में ये भी क्लॉज होता है कि 1 महीने या 1 साल में अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू अननेचुरल कॉजेज तो वो टर्म इंश्योरेंस शायद पे ना करें। क्योंकि कभी कभी लगता है, देखो हमको नहीं पता कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं वो कैसे होंगे, क्या पता लोग पैसे के लालच में जो है जिसकी पॉलिसी होल्डर है उसका ही कुछ कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो कंपनी इज ओपन फॉर ऑल दिस थिंग्स। कंपनी देखती है कि हाँ देयर इज नो फाउल प्ले, कोई फाउल प्ले नहीं है, नेचुरल डेथ हुई है, भले एक्यूट इलनेस हुई है पर नेचुरल डेथ हुई है तो कंपनी विल पे। बट 1 महीने के अंदर ही अगर हाउस लोन लेने के 1 महीने के अंदर ही अगर डेथ हो गई है तो कंपनी के भी कानों में घंटे तो गूंजे कि क्यों अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो कंपनी उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगी। जब उसको लगेगा कि हाँ लोन मतलब टर्म इंश्योरेंस जो है पूरा करेक्ट है, पूरा सही पेपर्स जेन्युइन है, तो वो इशू कर देगी, उसमें इशू प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मगर अगर उनको डाउट होता है तो वो उसको लटका के रखते हैं।
ओके सो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली पुट करती हूँ कि अगर कंपनी ने खुद का अपना मेडिकल कराया, उसके बाद ओके करके और उसको एग्री कर दिया और वो टर्म शुरू हो गया, तो उसके बाद भी अगर विद इन 1 to 2 मंथ्स किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी कंपनी डिनाई कर सकती है, अपने खुद के मेडिकल को डिनाई कर सकती है या नहीं, यूजुअली नो, दे शुड पे एक्चुअली। इसमें फिर क्या होता है कि कंपनी बोलती है आपने लोन तुरंत लिया था और तुरंत डेथ हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा फाउल प्ले सस्पिशन हो सकता है। सो दैट इज व्हाई कंपनी अपने लेवल से तो दे इन्वेस्टिगेट, में इन्वेस्ट? हाँ, वो थर्ड पार्टीज उनकी होती हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं। अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो डिपेंडेंट्स हैं दे कैन फाइट द केस इन कोर्ट। ओके ओके फाइन फाइन चलो, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अभी हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं और बहुत सारे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं आज की इस प्रेजेंटेशन से। तो आप अभी भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है। So Mr. Roshan is with us. आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, बस मैं कहना चाहता था कि रितेश जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बस एक कंसेप्ट में कहीं बस एक पॉइंट में इशू है। मतलब वैसे अभी दीपावली में जो गोल्ड का बताया रितेश जी ने, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। 9999 का किसी ने बार दिया और जब उन्हीं के यहाँ टेस्ट कराया तो वो 96 का बार निकला। तो वो कहने लगे वो लिखा मैंने कागज दिया है आपको, तो ये कागज आप मेरे 176 स्टोर्स है कहीं से भी वापस ले लेना पैसा। लेकिन मैंने कहा जब यहीं पे आइटम ही अलग है तो कागज लेके मैं क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा कंसर्न है, मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट शायद क्लियर नहीं है। वो है चिट फंड का। चिट फंड इज नथिंग बस एज पर एक्ट, एज पर रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज लाइक अ किटी पार्टी। वो किटी है 20 लोगों की या 12 लोगों की, जितने भी लोगों की आप लोग किटी करते हैं, एंड रिवर्स डिस्काउंटिंग नेचर पे। लेकिन जो कंपनीज हैं वो उसे एज अ पोंजी स्कीम शो करती हैं और वो फिर फेल होती हैं, क्योंकि किटी लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन एंड लाइक इफ वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, जैसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करी है मुंबई में, जो इंडिमनिटी इंश्योरेंस दे रहा है, एंड बहुत से प्रोफेशनल्स को पता ही नहीं है कि ये भी होता है। तो इसी तरीके से वो एक कम्युनिटी है, चिट फंड एक किटी है, जो 20 लोगों से ज्यादा में आपको नहीं करना चाहिए। और आप ही अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका पैसा कभी नहीं जाता है। बहुत से लोग अनरजिस्टर्ड किटी पार्टी करते हैं, कैश में लेन देन करते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड है किटी तो उसका पैसा कभी नहीं जाता है। लाइक वी हैव टू गो इन डेप्थ इन दैट रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, देन वी कैन। एंड वेरी नाइस प्रेजेंटेशन मिस्टर रितेश, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू। Thank you थैंक so यू वेरी much. मच एंड थैंक यू वेरी मच सुधी for sending this invitation to us too. Thank you. So it was a marvelous presentation. And friends, please mind it, all our presentations are recorded. This presentation is also recorded. Anyone because of time constraint and other problem, अगर वो हमारे इस presentation को attend नहीं कर पाए हैं, please don't worry. Soon we will be uploading this presentation on YouTube for our future access. एंड जो लोग भी ब्रेस्ट सर्जरी को फॉलो करते हैं, ब्रेस्ट सर्जरीज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट मंथ इज एन इवन मंथ और हमारे पास बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिगार्डिंग ब्रेस्ट सर्जरी जो हम डिस्कस करेंगे। उसकी डिटेल बहुत ही जल्दी मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज हमें फॉलो करते रहिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी नई नई एक्टिविटीज हम ब्रेस्ट और एंडोक्रीन सर्जरी से रिलेटेड कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा बने। और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपके कमेंट्स और आपका शेयर हमको मोटिवेट करेगा। Thank you very much. Ritesh, I am so thankful to you and it really made our day. We learned a lot. It was a very great learning opportunity. बहुत नई नई अच्छी बातें सीखी and as always you are a gem. Thank you very much for joining us today. Thank you all our participants. I could see so many friends, they So have shall I still with us. It disconnect was now? a long, yeah, now we can disconnect, we can leave this meeting with a promise that we will be meeting soon. Thank you very much.